Next, viewers, tracking some breaking developments with respect to the fire that has broken out in the Tardev area of Mumbai, where a level 3 fire had broken out in the 20 stories Kamla building near Mumbai's Bhatia Hospital in Tardev area. We're being told that 13 fire engines are at present at the spot trying to get the situation under control. The fire tenders, in fact, trying to douse this fire that has broken out in this 20-story Kamla building near Mumbai's Bhatia Hospital is what we're being told. The visuals of this fire, viewers, are on your screens right now, where you can see this massive fire which has broken out in this 20-story building. Now we're being told it's a level 3 fire that the authorities are saying is a massive fire. There are at least 13 fire engines that have already reached at the spot trying to get this fire under control, trying to douse the fire as well. And let me go across to my colleague Alicia, who's joining us live from this location of this fire as well. Alicia, tell us what is happening around you. Are there rescue operations that are underway right now? Well, of course, Priyanka, we know that the fire broke out at around 7:30 p.m., 7:30 a.m. And let me show you the visual. This is the same building, Kamla building near the Bhatia Hospital, where on the 18th floor, this is a 20-story structure where the fire broke out at the 18th floor. My video journalist Kanti has been showing you the visuals from exact location where the fire broke out. According to the Mumbai Fire Brigade information, where the fire broke out at around 7:30 a.m. And importantly, the fire brigade team has been come here by around 8:10. The information which is given, the updated information, and it's a level 3 fire which broke out in a Kamla building that is opposite to the Bhatia Hospital. And importantly, it has also been said that 2 has been injured, which has already been sent to the Bhatia Hospital, and the condition is awaited from the hospital. But here we can see there are 13 fire brigade team which has already been present at the spot, and they have been trying hard to first to evacuate the people from the building, because their safety will be the first priority. Here are the police officials who has been also there and keeping away the people from the same location. बट वी नो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये भाटिया हॉस्पिटल के पास का कमला बिल्डिंग है, और इसी बिल्डिंग में जो एक तरफ जो 20 माले की ये बिल्डिंग है, और 20 माले में से 18 माले में जो है ये आग लगी है। सीधे तस्वीरें हम आपको इसी बिल्डिंग से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब 13 फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, और सबसे पहले लोगों को इवैक्यूएट यहाँ से किया जा रहा है। यहाँ पर जो क्योंकि एक तरफ जो बिल्डिंग है एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग होने की वजह से जैसे ही यहाँ की खबर पड़ी, क्योंकि बताया जा रहा है मुंबई फायर ब्रिगेड टीम की ओर से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जहाँ 7:28 पर इन्फॉर्मेशन दी गई थी इस आग लगने की। हालांकि किस वजह से आग लगी इस पर अब तक कोई पता नहीं चला है, और विजुअल जहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 13 फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। 7 जंबो टैंकर्स यहाँ पर लाए गए, क्योंकि लेवल 3 फायर जो है वो रिपोर्ट की गई है। यहाँ इस पूरे हादसे में जहाँ तक देख रहे हैं कि 2 लोग घायल हैं, और उनको पास के भाटिया हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया है, और देखा जाएगा कि उनकी क्या कंडीशन है। उसके कंडीशन रिपोर्ट जो है वो अभी तक अवेटेड है, उसका भी इंतज़ार किया जाएगा, और डिटेल अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है इसको लेकर भी जो है पुलिस ऑफिशल्स और BMC की ओर से लगातार इन्फॉर्मेशन तो दी जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये भाटिया हॉस्पिटल, तारदेव के भाटिया हॉस्पिटल के पास में ही ये कमला बिल्डिंग है, जहाँ के 18वें मंजिल पर आग लगी जो है यहाँ पर आग लगी है, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम सबसे पहले यहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, BMC के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। पहले तो ये फायर को जो है आग को काबू में लाना और साथ ही लोगों को इवैक्यूएट करना सबसे पहले प्रायोरिटी पे देखा जाएगा, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, और ये इस आग का प्रभाव किसी और जगह पर ना हो, दूसरों के घरों पर ना हो, इस पर भी पूरा ख्याल ज़रूर रखा जाएगा। और इसी की वजह से हालांकि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और जो बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आग लगने पर कहीं ना कहीं जो लिफ्ट्स है वो बंद की जाएंगी। तो एक चैलेंजिंग जो बेहोशी की हालत में आ गए थे, अभी भी रेस्क्यू आपके पास क्या डिटेल्स है? कितने लोगों का अभी तक निकाला गया? ओल्ड एज के लोग हैं, बहुत ही डरे हुए लोग हैं, तो उनको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की। तो उनको चलते हुए आए हैं, उनको अभी ट्रॉली पे डाल के हॉस्पिटल में भेजा गया है। भाटिया हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा भाटिया ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। पेशेंट है
जसलोक में गिलियन नायर में गए, लेकिन रिलायंस और ओकार्ड उन्होंने एक भी पेशेंट नहीं, उनका जो सुबह का कोई मैनेजमेंट होगा तो उन्होंने नहीं लिया है। अरुण दुधवड़कर का कहना है कि थोड़ा सबसाइड होने दो, उसके बाद हम खुद वो दोनों हॉस्पिटल में जाके उनके प्रशासन को पूछने वाले हैं कि ऐसा इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकते हैं। आपके बारे में थोड़ा अभी क्या कंट्रोल में आई है? अभी क्या आता फायरच्या लोकांचं म्हणणं आहे की कदाचित एसीच्या प्लांटला एसीचं याला सर्किट झालं असावं, त्याचं नक्की कारण आपल्याला नंतरच कळू शकतं, कारण आता सगळे फायरवाले आग विझवताना दिसत आहेत। अरुण दुधवळकर आणि मी आणि त्यांचे सैनिक किरण बाळसराफ सगळ्यांनी मेहनत घेऊन लोकांना मैं हिंदी में जानना चाहेंगे कि फायर कंट्रोल में है अभी फिलहाल, क्या सिचुएशन है एट प्रेजेंट? भड़की हुई जो फायर है वो कंट्रोल में है, फ्लेम जो है वो कंट्रोल में है। धुआं ज्यादा है, उसको निकालना ज्यादा जरूरी पड़ता है क्योंकि वापस उसका भड़काव उड़ सकता है, क्योंकि हवा का झोंका ऊपर है। 20 माले पे लग गई है, 19 माले पे, तो 20, 21, 17, 16, 15 उसमें में भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारे शिवसैनिक बालसराफ दुधवड़कर उन्होंने सबके मिलके सबको नीचे उतारा है। तो कोई ट्रैप नहीं, कोई फंसा हुआ नहीं? अभी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे आग लगते तो बहुत ही ओल्ड एज के लोग हैं, ज्येष्ठ लोग हैं और डरते हैं, तो डरे हुए लोगों का अंदर लेके आए। मॅडम कोणी लहान मुलं आहेत का? Well, yes, Alicia, if I could come back to you, we are getting a lot of responses from the authorities as well with respect to how the fire has been brought under control. But have you found out what the cause of the fire really was, and will there be an investigation on the same? Well, Priyanka, we have to wait till the time the fire brigade rouse the fire, because as per the mayor, which has clearly stated, and already she's been looking into the concerned matter, where she has said that the fire has been brought into the control, and the police authorities and specifically the fire brigade team who are already been present. There are 13 fire engines here who've been trying to get the fire under control, and only after that there can be the we only can know about it how the fire has been broken out in this same building. So like this is the part of investigation. Only after once the fire brigade team get the fire under control, once the cooling operations get underway, after which they will look into the matter ki how does this fire broke out here. But we see here this was the fire which broke out at around 7:28 p.m. 28 a.m. in the morning, and the information which was sought to the Mumbai fire brigade team was around 8:10, where 13 fire brigade engines, the fire engines were present at this location. 7 water tankers were present in the location, and they were the first तो जिस तरीके से अभी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तारदेव के जो है तारदेव में भाटिया हॉस्पिटल के ऑपोजिट में ये बिल्डिंग है, कमला बिल्डिंग, जिसकी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और फायर ब्रिगेड की टीम की ओर से जो जानकारी दी गई थी कि सुबह 7:28 में ये आग लगी थी, और आग लगने की वजह से जहाँ पर लगातार यहाँ पर 13 फायर इंजन की जो टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। और बिल्कुल इसको ज़रूर देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है किस वजह से लगी है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी में मुंबई ब्रिगेड और मुंबई फायर ब्रिगेड टीम की ओर से पहले ये प्रायोरिटी पर देखा जा रहा है कि सबसे पहले लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, साथ ही साथ आग को काबू में लाने के बाद ही इसकी वजह पता चल सकती है कि किस वजह से आग लगी है। क्योंकि एक तरफ अब आग को काबू में लाना और उसके बाद उसकी कूलिंग ऑपरेशन के बाद ही एक इन्वेस्टिगेशन खुद इनके ओर से यानी फायर ब्रिगेड टीम की ओर से की जाएगी। तो अभी फिलहाल जो लगातार फायर जो है फायर को कंट्रोल लाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम जो यहाँ पर मौजूद है, हमने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इसी बिल्डिंग के 18th फ्लोर पे जहाँ पर ये आग लगी थी, और आग लगने की वजह तो अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन इस पूरे हादसे में जहाँ 2 लोग घायल हो गए उनको पास के भाटिया हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया है। और साथ ही अब देखा जाएगा कि किस तरीके से जो है आगे के लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो है तैनाती यहाँ पर पुलिस की ओर से ज़रूर की गई है। हर एक
सिचुएशन को संभालने की पूरी कोशिश यहाँ पर ज़रूर की जा रही है। और जैसे हमने कि बताया कि एक प्रायोरिटी, जो सबसे पहले प्रायोरिटी, देखिए शायद ही जो है यहाँ पर अब यहाँ पर जो है एक तरफ एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लगातार तस्वीर आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट कांति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से डॉक्टर्स की टीम और पुलिस यहाँ पर मौजूद है। यानी कहीं ना कहीं पर इसमें कोई भी घायल होने की शंका ज़रूर बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लेवल 3 फायर रिपोर्ट की गई है उसके बाद ही यहाँ पर 13 फायर ब्रिगेड की टीम और 5 एम्बुलेंस की जो वैन है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर एक देख रहे हैं कि शायद ही कोई घायल है जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं पर दो जनों को फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन फायर ब्रिगेड टीम की ओर से दी गई थी, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके की जो हलचल यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रही है। लगातार पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, बीएमसी की टीम यहाँ पर मौजूद है और सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल में किस तरीके से लाया। लेकिन कहीं ना कहीं पर लेवल 3 फायर आग का प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से कई लोग घायल हो सकते हैं, इसकी आशंका। लेकिन एक तरफ इंतज़ार करना होगा कि क्या ऑफिशियली इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या ऑफिशियली जो है स्टेटमेंट हम बीएमसी और मुंबई पुलिस की ओर से इंतज़ार करेंगे। और ख़ास तौर पर इस समय जहां पर सिर्फ कितने लोग घायल हैं इसको लेकर अब सिर्फ अस्पताल ही सही नंबर्स बता सकते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या ये रही है। एक तरफ हम यहाँ पर देखेंगे कि मेयर यहाँ पर मौजूद है। किशोरी ताई क्या फिलहाल सिचुएशन है अंदर, और आप खुद जायजा लेकर आए हो, क्या अभी आग को काबू में? 6:45 या 6:50 में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ है। तुरंत हमारे इधर के जो लोकल काम करते हैं अरुण दुधवड़कर, उनको पता चलने के बाद इधर के लोगों ने भी डिजास्टर पुलिस सबको फ़ोन किया, एम्बुलेंस तुरंत आ गई, फायर क्या गाड़ियाँ आ गई। लोगों को जो शिव सैनिक लोग हैं उन्होंने पहला लिफ्ट बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी बंद की और सबको ऊपर से लेके आए, उठा के लेके आए। बाजू की जो हमारी मंगल मातृ मंदिर जो इमारत है उसमें सबको रखा गया है, सबका नाश्ता वगैरह कर रहे। हर वाड़िया के डॉक्टर लोगों को बुलाया है, क्योंकि एक फर्स्ट डोज स्टेट डोज जिसका हाइपरटेंशन है, सभी लोगों को इवैक्यूएट सबको किया है। और जिसको लगता है घबराए हुए उनको भाटिया में लेके जा रहे हैं। अब तक क्या सिचुएशन है, मतलब कि आग को काबू में? 15 लोग भाटिया में गए हैं, 1-2 लोग नायर में गए हैं, 1-2 लोग जसलोक में गए हैं। लेकिन सबकी परिस्थिति अभी तो ठीक है। अभी हम दोनों जा रहे हैं और देख रहे हैं। अभी आग की क्या परिस्थिति है? क्या अभी धुआं निकल रहा है, फ्लेम तो कम हुई है, फ्लेम कम हो गया और कितने कंट्रोल में आ गई है। तो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। हाँ से और वजह क्या है? शॉर्ट सर्किट जैसा ऐसा अभी तो प्राथमिक स्वरूप में लग रहा है। शुक्रिया। तो ये थे मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर, जो खुद इस पूरे आग के सिचुएशन को लेकर जायजा लेकर आए थे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब जो जानकारी खुद किशोरी पेडनेकर की ओर से दी गई है कि अब आग को कहीं ना कहीं पर काबू में पाया गया है। सिर्फ फ्लेम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कई लोगों को स्पेसिफिकली यहां से इवैक्यूएट ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी 10 से 15 लोग हैं जिनको पास के अस्पताल में, फिर चाहे वो भाटिया हॉस्पिटल हो या फिर नायर हॉस्पिटल हो, उनमें ऑलरेडी उनको भर्ती कराया गया है। जिनको सफोकेशन को लेकर जिनको तकलीफें हो रही थी उनको पास के अस्पताल में भर्ती। Well, yes, Alisha there getting us the ground report from the spot where this fire had broken out, a level 3 fire in the 20-story Kamla building, and which now the mayor has also assured has gotten under control and an investigation will take place, but the prima facie reason for this fire seems to be short circuit.